Hello student, good afternoon to all of you. In today's class, we are going to study the consumer equilibrium with the help of the indifference curve. In this class, we are complete the indifference curve definition, indifference map, monotonic preferences, marginal rate of substitution, properties of indifference curve, and the budget line. And with the help of budget line and combination of budget line and indifference curve, we have determined the determination of the consumer equilibrium. First, the definition of the consumer equilibrium. Indifference curve is the locus of all points among which the consumer is indifferent. Consumer is indifferent means वो सभी पॉइंट जो किसी पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व में लाइज करते हैं उन सभी पॉइंट पर कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम होता है या सेटिस्फेक्शन होता है वो इक्वल होता है मीन्स वो एक पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व पर किसी भी कॉम्बिनेशन को चूज करता है दो कमोडिटीज के लिए तो उन सभी कॉम्बिनेशंस पर कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो इंडिफरेंट रहता है मीन्स वो इक्वल रहता है सेकंड है इंडिफरेंस मैप indifference map basically the family of indifference curve. Indifference map is that represent the consumer over all the bundles of the two goods. Family of indifference curve that represent consumer over all the bundles of the two goods. तो जो डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स हैं उन डिफरेंट बंडल्स में कंज्यूमर जो डिफरेंट ऑप्शन चूज करता है उन डिफरेंट ऑप्शंस के कर्व को जो हम एक डायग्राम से शो करते हैं उसे हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं दिस इज आल्सो नोन द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस मोर क्वांटिटी ऑफ वन विदाउट सैक्रिफाइसिंग ऑफ अनदर या हम इसको ऐसे कह सकते हैं द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मींस द कंज्यूमर विल get more satisfaction of the consumption of more and more goods without sacrificing of the another यानी कि जब किसी कंज्यूमर को ज्यादा क्वांटिटीज मिलती हैं किसी भी गुड्स की विदाउट द सैक्रिफाइसिंग ऑफ अनदर तो एज ए रैशनल कंज्यूमर वो उस कॉम्बिनेशन को चूज करता है जिसमें उसको ज्यादा नंबर ऑफ द क्वांटिटीज मिले अभी हम इसको मैं डिटेल में भी आगे बताऊंगा इसको नेक्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन Marginal rate of substitution means the small change in the rate of substitution between the two goods. Properties of indifference curve and the budget line. So we'll start with the indifference curve. Indifference curve, all the point lies on the same curve, provide the equal satisfaction to the consumer. तो इसको हम ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं ये देखिए इन द y एक्सिस हमने यहां पे लिया है गुड्स y और यहां पे हमने x में लिया है हमने गुड्स x और एक ये इंडिफरेंस कर्व है ये हमने लिया IC अब ये y एक्सिस पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं और x पर भी डिफरेंट क्वांटिटीज हैं तो इन सभी क्वांटिटीज को अगर हम इन डिफरेंस पॉइंट्स पे रखते हैं तो ऑल द पॉइंट्स lies in the same indifference curve provides the equal satisfaction to the consumers so point A B C और D तो हम ये कह सकते हैं कि A equal to B equal to C equal to D the all point lies on the same indifference curve provide the equal satisfaction to the consumers clear नेक्स्ट होता है इंडिफरेंस मैप इंडिफरेंस मैप क्या होता है इंडिफरेंस मैप मींस ऑल different indifference curve all the different indifference curve draw on a same diagram or this is the family of the indifference curve say IC1 IC2 IC3 ये different indifference curve है ये represent क्या करते हैं ये represent करते हैं कि every upper indifference curve provides a higher satisfaction than the lower one means without sacrificing of the one we get the more quantity of the another commodity so example say अगर अभी हम कह रहे हैं कि यहां पर
इस पॉइंट पर से पॉइंट बी पर कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी, this much of quantity of the y is consuming and this much of quantity is x is consuming, means at the point of b जो कि IC1 पर लाइज है, वहां पर कंज्यूमर b पॉइंट पर ये क्वांटिटी y की और इतनी क्वांटिटी x की कंजम्पशन कर रहा है। बट अगर कंज्यूमर को मोर क्वांटिटी ऑफ द x कंजम्पशन करना है तो उसके लिए उसमें उसे क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ क्वांटिटीज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा y की, मींस वो इतनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस करेगा जब तभी वो इतनी मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी ऑफ एक्स कैन बी कंज्यूम। बट अगर वो IC2 पर कंजम्पशन करता है तो हम देखते हैं कि गेटिंग द मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स नो नीड टू सेक्रीफाइस द क्वांटिटी ऑफ द वाई। देखिए इन द वाई एक्सिस जो IC1 पर लाइज कर रहा है, दिस मच ऑफ क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी एक्स की और इतनी क्वांटिटी वाई की कंजम्पशन कर रहे हैं अभी बी पॉइंट पे जो IC1 पर है। लेकिन अगर हम IC2 पर कंजम्पशन करते हैं तो विदाउट सेक्रीफाइसिंग ऑफ द वाई वी आर गेटिंग दिस मच मोर क्वांटिटी, इतनी ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी हमें, जबकि वाई में कोई भी कमी नहीं करनी पड़ी। और ऐसे ही अगर हम IC3 में जाते हैं तो अगेन द मोर क्वांटिटी ऑफ एक्स इज कंज्यूमिंग विदाउट सेक्रीफाइसिंग ऑफ द वाई कमोडिटी। तो ये में क्या बताता है, दिस से दैट द एवरी अपर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड द हायर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर्स। मैंने भी आपको बताया था नेक्स्ट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मींस द कंज्यूमर विल बी मोनोटोनस व्हेन मोर क्वांटिटी ऑफ वन विदाउट सेक्रीफाइस अनदर कमोडिटी, मींस एक क्वांटिटी को किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी से वाई क्वांटिटी को सेक्रीफाइस किए बिना जब उसको एक्स की ज्यादा क्वांटिटी मिलती है तो ऐसे केसेस में अ रैशनल कंज्यूमर से द मोनोटोनिक, उसे मोनोटोनिक प्रेफरेंस बोलते हैं। एक सिंपल सी बात है, एग्जांपल के लिए हम ये कहते हैं कि एक हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन चूज करते हैं कमोडिटीज के, ये हम बोलते हैं बंडल। बंडल ऑफ कमोडिटी से एक बंडल हमारे पास जो y और x का जो बंडल हमारे पास कॉम्बिनेशन, एक हमारे पास है 1:1, दूसरा बंडल हमारे पास है 1:3। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 3:2, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है 2:3। अब अगर इन कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी, तो यहां पर कंज्यूमर इनडिफरेंट है। ओके, पहले केसेस में 3 ऑफ y एंड 2 ऑफ x, सेकेंड केस में 2 ऑफ y एंड 3 ऑफ x, मींस 3 क्वांटिटीज, मींस हमारी जो क्वांटिटी x है उसमें 1 क्वांटिटी प्लस x हुआ है और माइनस y हुआ है 1 यूनिट। तो ऐसे केसेस में हम इसको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहां पर मोर क्वांटिटी ऑफ वन बट सेक्रीफाइसिंग अनदर। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहां पे होगा, जब यहां पर फर्स्ट केसेस में ऑप्शन क्या है कि 3 ऑफ y एंड 2 ऑफ x, लेकिन दूसरे केसेस में ऑप्शन क्या है 3 ऑफ y एंड 3 ऑफ x। so without sacrificing of the any unit of y getting the more quantity of the x। तो ऐसे केसेस में अगर हम किसी रैशनल कंज्यूमर से बोलेंगे बताइए भी आपको इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो डेफिनेटली द कंज्यूमर विल चूज दिस ऑप्शन। व्हाई, बिकॉज यहां पर y में सेक्रीफाइस किए बगैर x की ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। रिपीट कर रहा हूं, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मींस द प्रेफरेंसेस द रैशनल कंज्यूमर चूज द बंडल विच प्रोवाइड more quantity, at least one more units of the one commodity without sacrificing the another one। किसी भी यूनिट में कमी किए बिना दूसरी यूनिट्स की ज्यादा क्वांटिटीज को अगर मिलता है तो एज ए रैशनल कंज्यूमर उस डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को ही प्रेफरेंस कर देगा, उसे बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मींस जो सब्स्टिट्यूट करते हैं दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द कमोडिटी। देखिए ये एक इंडिफरेंस कर्व मैं बना रहा हूं,
ये मेरे पास है गुड्स वाई, ये गुड्स एक्स, और ये मेरे पास है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ये इंडिफरेंस कर्व मेरे पास कन्वेक्स टू ओरिजिन ओ है, कन्वेक्स टू ओरिजिन ओ। ये मेरे पास डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ए बी सी, और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। नाउ तो जब कंज्यूमर ए से बी पर शिफ्ट होता है तो हम देख रहे हैं कि दिस मच क्वांटिटी सेक्रीफाइस गेटिंग द दिस मच मोर क्वांटिटी। फिर मींस इतनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी एक्स की कंजम्पशन करने के लिए ये क्वांटिटी हमें वाई की सेक्रीफाइस करनी पड़ी। फिर नेक्स्ट टाइम पे जब वो बी से सी पे आएगा तो इतनी क्वांटिटी सेक्रीफाइस गेटिंग दिस मच, और जब वो एक और पॉइंट लेते हैं इस पे डी पॉइंट पे, so as more and more quantities say 1 2 3 4, every one more unit the consumer is sacrifice a less quantity। पहले उसने इतना सेक्रीफाइस किया सेम क्वांटिटी गेन करने के लिए, फिर 2 से 3 यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंजम्पशन करने के लिए उसने और कम किया, फिर 3 से 4 करने के लिए तो और कंजम्पशन किया। मींस ये जो सेक्रीफाइसिंग रेट है वो रिड्यूस हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू होगा डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। हाउ मच यू सेक्रीफाइस, how much you sacrifice of 1 unit and against the how much you gain. So small change in the rate of substitute between two goods so that the total satisfaction of the consumer remain the same। कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, ऑल्दो उसको जो क्वांटिटीज मिल रही हैं वो डिफरेंट है, जो y और x की जो क्वांटिटीज हैं वो अलग हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन एक रहेगा। ध्यान रखना, टोटल क्वांटिटी कंजम्पशन और टोटल सेटिस्फेक्शन तो अलग बातें हैं, क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन all the point lies on the same curve, therefore the consumer satisfaction will remain the same। नेक्स्ट हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का, तो इंडिफरेंस का की प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए ये मेरे पास इंडिफरेंस कर्व है, ये गुड्स y गुड्स x, और ये मेरे पास एक इंडिफरेंस कर्व है IC। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टीज होगी नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू इट्स ओरिजिन O। जो इंडिफरेंस कर्व है वो अपने ओरिजिन O से कन्वेक्स होगा, राइट? इंडिफरेंस कर्व अपनी ओरिजिन के कन्वेक्स होगा। क्यों कन्वेक्स होगा? क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। व्हाई? बिकॉज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द एक्स इज कंज्यूमिंग, कंज्यूमर अपनी दूसरी क्वांटिटीज में पहले के कंपेरेटिवली कम 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 क्वांटिटीज को सेक्रीफाइस करता है, इसलिए जो आईसी कर्व है वो अपने ओरिजिन ओ के कन्वेक्स होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है, नीचे की राइट ऐसे इंडिफरेंस कर्व नीचे गिराएगा। क्यों नीचे क्यों आएगा? क्योंकि एडिशनल क्वांटिटी को कंजम्पशन करने के लिए हमें दूसरी क्वांटिटीज में सेक्रीफाइस करना कंपलसरी है, राइट? थर्ड प्रॉपर्टी, हायर आईसी प्रोवाइड हायर सेटिस्फेक्शन। एवरी अपर इंडिफरेंस कर्व या एवरी हायर आईसी प्रोवाइड हायर सेटिस्फेक्शन।
तो जैसे हम अब ऊपर की ओर जाते रहेंगे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो भी बढ़ता रहेगा। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो आईसी कर्व है वो हायर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर हम IC1 से IC2 की और IC2 से IC3 की ओर जाएंगे तो अपर IC प्रोवाइड हायर सेटिस्फेक्शन। फोर्थ, चौथा पॉइंट, टू IC कर्व, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर intersect each other. Two indifference curve never intersect each other. देखिए, ये एक मेरा IC1 है और ये मेरा एक IC2 है। तो ये जो IC1 और IC2 हैं, ये एक पॉइंट से पॉइंट B पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज इम्पॉसिबल। तो दो इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। इसके फर्दर फिफ्थ पॉइंट आप और लिख सकते हैं, द आईसी कर्व नेवर टेंजेंट y ऑन x एक्सिस। जो आईसी कर्व हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस को भी टेंजेंट नहीं करते हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब हम कमोडिटीज को कंजम्पशन करते हैं तो उस केसेस में एटलीस्ट बोथ क्वांटिटी बोथ यूनिट्स में से किसी भी कमोडिटीज को कंजम्पशन करते हैं तो उनकी जो कंजम्पशन यूनिट है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। ये अजम्पशन है। तो इसलिए दो आईसी इंटरफेरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बजट लाइन। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। ये एक बजट लाइन है जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बजट लाइन is straight line downward to from left to right. होता क्या है इस बजट लाइन? बजट लाइन is a graphical presentation of the all those bundle which the consumer buy with given income and given price of the both the commodities. बजट लाइन क्या है? बजट लाइन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दोज बंडल, उन डिफरेंट बंडल्स का ग्राफिकल, उन डिफरेंट बंडल्स के कॉम्बिनेशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जहां पर कि कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम और दोनों कमोडिटीज के गिवन प्राइस से मैक्सिमम कंजम्पशन कर सकता है। ध्यान रखिए, बजट लाइन के केसेस में वो सभी अमाउंट जो कंज्यूमर के पास जो गिवन प्राइस अमाउंट है वो और जो डिफरेंट उसको मनी दे रखी है। एग्जाम्पल के लिए लेट कंज्यूमर के पास गिवन इनकम है से ₹20 और इस गिवन ₹20 को वो स्पेंड कर सकता है गुड्स वाई पर या गुड्स एक्स पर, राइट? So let the price of the goods Y and goods X both can be ₹4, ₹4 per unit each. तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं? देखिए, गिवन इनकम कितने हैं? ₹20, गिवन प्राइस कितने हैं? ₹4। तो ऐसे केसेस में कंज्यूमर कितना कंजम्पशन कर सकता है? Y का, Y और X का अगर हम एक रेशियो ले लेते हैं तो सारे के सभी पूरा जो मनी है ₹20 वो Y पे खर्च किया जा सकता है। तो ऐसे केस में Y कितनी यूनिट्स होंगी? 5 यूनिट्स और X कितनी होगी? 0। तो एक ये बंडल बन गया। दूसरा क्या है? अगर उसे X को कंजम्पशन करना है तो Y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज द कंज्यूमर्स इनकम इज गिवन। तो दूसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा? 4:1, 3:2, 2:3, 1:4 एंड 0:5। तो ये डिफरेंट बंडल्स हैं जिसको कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम और दोनों कमोडिटीज के गिवन प्राइस से खर्च कर सकता है। तो इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो वो एक लाइन ड्रॉ करेगा जो स्ट्रेट लाइन होगी, इसे हम बोलते हैं बजट लाइन। नाउ एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन एंड एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन। एनी पॉइंट आउटसाइड बजट लाइन से मैंने ये पॉइंट लिए A B C D E, ये पास है गुड्स X गुड्स Y। ये मैंने ले लिया पॉइंट N और ये मैंने पॉइंट ले लिया R।
तो अगर कंज्यूमर ए बी सी डी ई पर आता है तो इट मींस कंज्यूमर ने अपने द कंज्यूमर एंड स्पेंड द एंटायर मनी ऑफ द टू कमोडिटीज। आर पॉइंट पर आता है तो इट मींस कंज्यूमर ने जितना भी कंज्यूमर के पास मनी है उसको उसने पूरा स्पेंड नहीं किया। से आउट ऑफ द 20 उसने 20 से कुछ कम पैसे स्पेंड किए हैं बोथ द कमोडिटीज के ऊपर और कुछ पैसा भी उसकी पॉकेट में बचा हुआ है। लेकिन एंड पॉइंट क्या है? दिस इज अनअटेनेबल। अनअटेनेबल अनअटेनेबल क्यों है? क्योंकि ये उसके बजट लाइन से आउट है। यहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम कितना का स्पेंड कर सकता है? 20 रुपीज। लेकिन क्योंकि बजट लाइन से आउट है, वो बाहर है, तो उसकी आउट ऑफ बजट है, तो एंड पॉइंट पर वो नहीं पहुंच सकता है। एनी पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन पॉसिबल, पॉइंट ऑन ओवर द इंडिफरेंस का पॉसिबल, बट एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन इज इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इंडिफरेंस कर्व को हम कैसे इंडिफरेंस की हेल्प से हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होने के लिए दो कंडीशन का होना कंपलसरी है। पहला है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू रेट ऑफ प्राइस एक्स एंड प्राइस वाई। और दूसरा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एमआरएस जो है वो कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। गुड्स वाई, गुड्स एक्स, और ये मेरे पास एक बजट लाइन है जो स्ट्रेट लाइन है टेंजेंट टू वाई इन एक्स एक्सिस। और इस बजट लाइन पर मैंने इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ कर दिया। ये मेरा एक इंडिफरेंस कर्व है जो मैंने इस पे ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरे पे कहलाएगा आईसी। एक और बजट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रहा हूं मैं बजट लाइन पे, IC1। और एक और ड्रॉ करता हूं IC2। नाउ अब मैं देखूंगा कि मेरा जो बजट लाइन पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो 3 पॉइंट पर आ रहे हैं, पॉइंट ए, बी और सी। नाउ व्हाट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? तो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है द स्लोप ऑफ IC इक्वल टू स्लोप ऑफ budget line. The slope of indifference curve equal to slope of budget line. And second is the indifference curve is continuously falling. Yani IC marginal rate of substitution is fall. MRS continuously fall. दोनों पॉइंट का होना कंपलसरी है। तो अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट देखता हूं तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट इज लाइज ऑन इन बजट लाइन एंड सी पॉइंट आल्सो लाइज ऑन द बजट लाइन। तो इनमें से इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है? डेफिनेटली सी पॉइंट। Why? Because A and B are provide the lesser satisfaction compared to the C. ये हमारे पास inferior combinations हैं A और B compared to C. क्यों? Because C lies on upper indifference curve. AB lies on the IC0, ICO point पर, while the C point lies on the IC1. और अभी मैंने आपको बताया था कि अपर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व प्रोवाइड द हायर सेटिस्फेक्शन। तो बिकॉज सी पॉइंट लाइज ऑन IC1 which is above the ICO, therefore C point is the equilibrium point. What about the D? Why not D? Because D तो और भी ऊपर है। Because D is unattainable because this is outside the budget line. अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी पॉइंट जो बजट लाइन से बाहर होगा वो अनअटेनेबल है, वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो गिवन इनकम है वो इस लेवल को नहीं अचीव कर सकता। ए बी सी तीनों अचीवेबल हैं, लेकिन सी इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन कंपेयर टू द ए बी। क्यों? क्योंकि सी पॉइंट जो है वो अबव द इंडिफरेंस कर्व है कंपेयर टू ओ। तो ओनली सी इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट?
तो इसमें कंडीशन क्या है, मैंने आपको बताया था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, राइट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और इक्वल टू रेट ऑफ प्राइस ऑफ पी एक्स अपॉन में पी वाई, क्योंकि जो या ऐसे अभी इस पे देख सकते हैं द स्लोप ऑफ इंडक्टेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। देखिए ये हमारा स्लोप ऑफ इंडक्टेंस कर्व है और ये स्लोप हमारे पास बजट लाइन है, तो टेंजेंट करे, इंटरसेक्ट नहीं करे। जो ए और बी है वो बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जबकि जो सी पॉइंट है वो बजट लाइन को टेंजेंट कर रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को जहां पर टेंजेंट करेगा, छुएगा, वही पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, वो कट नहीं करेगा। ए बी कट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम नहीं है। सी टेंजेंट कर रहा है, इक्विलिब्रियम है। डी टच ही नहीं कर रहा, ना तो कट कर रहा है ना वो टेंजेंट कर रहा है, ये अनअटेनेबल है, तो डी तो बाहर हो गया। तो सी इज द ओनली पॉइंट बिकॉज सी दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है। ध्यान रखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वहीं पर बनेगा जहां पर दोनों कंडीशन एक साथ पूरी होंगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो उस केसेस में या तो एम आर एस एक्स वाई ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई होगा, अदरवाइज एम आर एस एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन में पी वाई होगा। देखिए अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा मीन्स हमारा जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम का, टेंजेंसी का, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल टू प्राइस ऑफ पी एक्स अपॉन पी वाई इज द कंडीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है, या तो एम आर एस ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई होगा या एम आर एस लेस देन पी एक्स अपॉन में पी वाई होगा। दोनों ही केसेस में इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम के लिए ओनली देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन, दैट इज द स्लोप ऑफ द आईसी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन एंड एम आर एस कंटिन्यूअसली फॉल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है, इस पर जरूर टेंशन करें। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और साथ में ये कंडीशन भी लिखनी कंपलसरी है। सो टिल देन आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्रिप्शन और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जो क्लास है वो आपको कंटिन्यूसली विदाउट एनी इंटरप्शन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।